چلا آ گئے آگے مزاج کو ٹیمپرامنٹ بولتے ہیں. آج ہم لوگ مزاج شروع کریں گے. مزاج میں اس کا جو پورا ڈیٹیل آپ کو امور طبیہ میں ڈاکٹر جمال جو ہے پڑھائیں گے. لیکن ہم لوگ جو ہے چونکہ فلسفہ میں بھی تھوڑا سا پورشن ہے تو فلسفہ کے لحاظ سے جو ہے اس کو تھوڑا سا پڑھایا جائے گا. اور بعد میں جو ہے امور طبیہ جب آئے گا, امور طبیہ میں ابھی مزاج کا جب چیپٹر آئے گا تو اس میں آپ کو پورا ڈیٹیل جو ہے مزاج کے بارے میں بتایا جائے گا. ابھی فلسفہ کے لحاظ سے اس کا چھوٹا سا ہلکا سا پورشن جو ہے بتایا جا رہا ہے. اب اس میں سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں مزاج کی کیا تعریف ہے, کیا ڈیفینیشن ہے. سب سے پہلے اس کو لکھ لیتے ہیں پھر سمجھتے ہیں. کیا ہے, جب دو یا دو سے زیادہ متضاد کیفیات کے عناصر, جب دو یا دو سے زیادہ متضاد کیفیات کے عناصر, جب دو یا دو سے زیادہ متضاد کیفیات کے عناصر آپس میں ملتے ہیں, جب دو یا دو سے زیادہ متضاد کیفیات کے عناصر آپس میں ملتے ہیں تو ان کے ملنے کے بعد مرکب میں ایک نئی کیفیت پیدا ہوتی ہے. تو ان کے ملنے کے بعد مرکب میں ایک نئی کیفیت پیدا ہوتی ہے. جب دو یا دو سے زیادہ متضاد کیفیات کے عناصر آپس میں ملتے ہیں تو ان کے ملنے کے بعد مرکب میں ایک نئی کیفیت پیدا ہوتی ہے جو مرکب کے تمام اجزاء میں یکساں اور برابر ہوتی ہے. جو مرکب کے تمام اجزاء میں یکساں اور برابر ہوتی ہے. یکساں اور برابر ہوتی ہے, اس نئی کیفیت کا نام مزاج ہے. کیا ہے, سب سے پہلے مزاج ہے. مزاج کو جو ہے انگریزی میں ٹیمپرامنٹ کہتے ہیں. ڈیفینیشن کیا ہو گیا, جب دو یا دو سے زیادہ متضاد کیفیات کے عناصر, عناصر کہتے ہیں ایلیمنٹس کو, متضاد کہتے ہیں ڈفرینٹ. کیفیت کل بتایا تھا حار, بارد, یابس, رطب, یہ کیفیت کل آپ کو بتایا تھا اس میں سے. تو جب دو متضاد کیفیات کے عناصر, متضاد کیفیت کا مطلب یہ ہوا کہ ڈفرینٹ جو کیفیت ہے اس کے جو عناصر ہیں آپس میں ملتے ہیں تو ان کے ملنے کے بعد مرکب میں ایک نئی کیفیت پیدا. مرکب کون ہوا, کمپاؤنڈ. مرکب کہتے ہیں کمپاؤنڈ کو, مطلب جو کل جیسے بتایا تھا کہ یونانی جو ہے وہ بیس کرتی ہے عناصر اربع کے اوپر. عناصر اربع کیا ہے کہ آگ, ہوا, مٹی, پانی, یہ عناصر اربع ہے. اور یونانی اطباء کا یا فلسفی کا یہ کہنا ہے کہ ساری جو ہے دنیا میں ساری چیزیں اسی چار چیز سے مل کر بنی ہے, آگ, ہوا, پانی, مٹی. اب سب کی کیفیت الگ الگ ہوتی ہے, جیسا کہ کل بتایا تھا آپ کو کہ آگ کی کیفیت جو ہے وہ حار, یابس ہے یعنی گرم اور خشک ہے, اور باقی جو ہوا ہے اس کی کیفیت جو ہے حار اور رطب ہے یعنی ہاٹ اینڈ ویٹ ہے. اسی طرح سے جو مٹی ہے اس کی کیفیت بارد, یابس ہے یعنی کولڈ اینڈ ڈرائی ہے. اسی طریقے سے جو آپ کے پانی ہے اس کی کیفیت جو ہے بارد, رطب ہے یعنی کولڈ اینڈ ویٹ ہے. تو سب کے ہر ایلیمنٹس ہے اس کی الگ الگ کیفیت ہوتی ہے. جب یہ ایلیمنٹس کیا ہوتا ہے, الگ الگ کیفیات کے ایلیمنٹس جب یہ آپس میں ملتے ہیں تو آپس میں ملنے کے بعد کیا ہوتا ہے, ایک کمپاؤنڈ بنتا ہے. جب یہ ساری کیفیت
یہ جب یہ عناصر جو مختلف کیفیات کے ہوتے ہیں جب یہ آپس میں ملتے ہیں تو آپس میں ملنے کے بعد کیا ہوتا ہے ایک کمپاؤنڈ بنتا ہے. اب جب جو کمپاؤنڈ بنا مان لیجئے کہ 4 عناصر ملے آپس میں 4 عناصر ملنے کے بعد ایک کمپاؤنڈ بنایا اور چاروں عناصر کی الگ الگ کیفیت ہوتی ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب مرکب بنتا ہے تو مرکب میں چاروں عناصر کی الگ الگ کیفیت نہیں ہوتی ہے بلکہ ایک نئی کیفیت پیدا ہوتی ہے. چاروں عناصر کی کیفیت آپس میں ٹوٹ پھوٹ کر کے ایک نئی کیفیت پیدا ہوتی ہے. اسی نئی کیفیت کو ہم مزاج کہتے ہیں. اور یہ جو نئی کیفیت ہے مرکب کے تمام اجزاء کہتے ہیں پارٹس کو, یعنی مرکب کے تمام پارٹس میں کیا ہوتی ہے یکساں ہوتی ہے. یکساں مطلب برابر, سملر, یکساں اور برابر ہوتی ہے بالکل. تو یہ جو کیفیت ہوتی ہے یہ مرکب کے تمام اجزاء میں یکساں اور برابر ہوتی ہے. اسی نئی کیفیت کا نام ہم کیا کہتے ہیں مزاج کہتے ہیں. اب اس میں اہل فلسفہ نے بہت سارا اگزامپل دیا ہے, بہت سارا اس کا یہ دیا ہے, اس کو ہم لکھ لیں گے. بس آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ منیمم 2 ہونا چاہیے, میکسیمم کتنا ہی ہو, منیمم 2 ہونا چاہیے. مطلب 2 یا 2 سے زیادہ عناصر کیا ہوگا جب آپس میں ملتا ہے تو ملنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ملنے کے بعد مرکب بنتا ہے اور مرکب میں ایک نئی کیفیت پیدا ہوتی ہے جو اس کے تمام اجزاء میں یکساں ہوتی ہے مرکب کے. اسی نئی کیفیت کا نام ہم مزاج ہے, اسی کو ہم مزاج کہتے ہیں. یہ ہو گیا آپ کے مزاج کی ڈیفینیشن. اس کو پھر سے ریپیٹ کر دیتے ہیں. جب 2 یا 2 سے زیادہ متضاد کیفیات کے عناصر آپس میں ملتے ہیں تو ان کے ملنے کے بعد مرکب میں ایک نئی کیفیت پیدا ہوتی ہے جو مرکب کے تمام اجزاء میں یکساں اور برابر ہوتی ہے. اس نئی کیفیت کا نام ہی کیا ہے مزاج ہے. اب اہل فلسفہ نے یہ بتایا ہے کہ یہ کیفیت جو ہے کیسے ایک دوسرے کو تیزی کو توڑتی ہے. انہوں نے کیا کہا کہ یہ جو کیفیت ہوتی ہے یہ آپس میں ایک دوسرے کو تیزی کو توڑتی ہے. مثال کے طور پر گرمی سردی کی تیزی کو توڑتی ہے یا تری خشکی کی تیزی کو توڑتی ہے. اس میں اگزامپل دیا انہوں نے کہ جیسے گرم پانی ہے اس میں ٹھنڈا پانی ڈال دیجئے تو کیا ہوگا, ٹھنڈا پانی نے گرمی کی تیزی کو توڑا اور گرم پانی نے ٹھنڈا پانی کی تیزی کو توڑا. دونوں مل کر کے ایک نیم گرم پانی بنایا, ایک الگ مرکب بنے نیم گرم پانی جس میں ایک نئی کیفیت ہو گئی. اس کو جو ہے لکھ لیتے ہیں ہم لوگ تاکہ اس کو یاد سمجھنے میں جب بھی آپ پڑھیے گا لکھا ہوا رہے گا تو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. بقول اہل فلسفہ کہ ایک کیفیت دوسرے کے کیفیت کی تیزی کو توڑ دیتی ہے. کہ ایک کیفیت دوسرے کے کیفیت کی تیزی کو توڑ دیتی ہے. تیزی کو توڑ دیتی ہے. بقول اہل فلسفہ کہ ایک کیفیت دوسرے کے کیفیت کی تیزی کو توڑ دیتی ہے. گرمی سردی کے زور کو گرمی جو ہے سردی کے زور کو اور سردی گرمی کی زیادتی کو اور سردی گرمی کی زیادتی کو اسی طرح خشکی تری کو اور
और तरी। इसी तरह क्या होता है, खुश्की तरी को और तरी खुश्की की बेशी को खत्म कर देती है। बेशी को खत्म कर देती है। क्या कहा अहले फलसफा ने? अहले फलसफा ने कहा कि एक कैफियत दूसरे की कैफियत की तेजी को तोड़ देती है, यानी गर्मी सर्दी के जोर को और सर्दी गर्मी की ज्यादती को। इसी तरह खुश्की तरी को और तरी खुश्की की बेशी को खत्म कर देती है, यानी गर्म चीजों को अगर ठंडे चीजों से मिलाया जाए तो दोनों एक दूसरे की कैफियत को क्या करते हैं, कम कर देते हैं या तोड़ देते हैं। इसी तरह से खुश्की और तरी को अगर आपस में मिलाया जाए तो दोनों जो है एक दूसरे की कैफियतों को तोड़ देते हैं। अब इसमें उन्होंने एग्जाम्पल दिया है और आगे कहा है कि और कैफियतों के इस तोड़ फोड़ के बाद और कैफियतों के इस तोड़ फोड़ के बाद एक पांचवी कैफियत पैदा होती है। और कैफियतों के इस तोड़ फोड़ के बाद एक पांचवी कैफियत पैदा होती है। और कैफियतों के इस तोड़ फोड़ के बाद एक पांचवी कैफियत पैदा होती है जो किसी कदर दरमियानी होती है जो किसी कदर दरमियानी होती है। इस पांचवी दरमियानी कैफियत को मिजाज कहते हैं। इस पांचवी दरमियानी कैफियत को मिजाज कहते हैं। बकौल अहले फलसफा कि एक कैफियत दूसरे के कैफियत की तेजी को तोड़ देती है और गर्मी सर्दी के जोर को और सर्दी गर्मी की ज्यादती को। इसी तरह खुश्की तरी और तरी खुश्की की बेशी को खत्म कर देती है और तरी खुश्की की बेशी को खत्म कर देती है। और कैफियतों के इस तोड़ फोड़ के बाद एक पांचवी कैफियत पैदा होती है जो किसी कदर दरमियानी होती है। इस पांचवी दरमियानी कैफियत को हम क्या कहते हैं, मिजाज कहते हैं। जो पांचवी दरमियानी कैफियत है इसी को हम मिजाज कहते हैं। मसलन मिसाल के तौर पर मसलन क्या होता है, गर्म और सर्द पानी को मिलाने से गर्म और सर्द पानी को मिलाने से पानी की सर्दी की शिद्दत गर्म और सर्द पानी को मिलाने से पानी की सर्दी की शिद्दत और गर्मी की तेजी टूट जाती है। मसलन गर्म और सर्द पानी को मिलाने से पानी की सर्दी की शिद्दत और गर्मी की तेजी टूट जाती है और पानी नीम गर्म और गुनगुना हो जाता है। पानी नीम गर्म और गुनगुना हो जाता है। इस तरह हवा और पानी, इसको दूसरे इसमें ले लेते हैं। इसमें जो है एग्जाम्पल दिया है इन्होंने कि गर्म और सर्द पानी को जब हम मिलाते हैं तो क्या होता है,
पानी की सर्दी की जो शिद्दत होती है और गर्मी की जो तेजी वो क्या करती है, पानी की सर्दी की जो शिद्दत होती है वो गर्मी की तेजी को तोड़ देती है और पानी नीम गर्म और गुनगुना हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल उन्होंने दिया है हवा और इसका। दूसरे एग्जाम्पल में इन्होंने कहा कि इस तरह हवा और पानी बाहम मखलूत होकर, दूसरी मिसाल हवा और पानी बाहम हवा और पानी बाहम मखलूत होकर एक तीसरी चीज यानी भाप बना देती है। यानी भाप बना देती है। हवा और पानी बाहम मखलूत होकर एक तीसरी चीज यानी भाप बना देती है, जो न पानी की तरह सर्द होती है जो न पानी की तरह सर्द होती है न हवा की तरह गर्म होती है। हवा और पानी बाहम मखलूत होकर एक तीसरी चीज यानी भाप बना देती है, जो न पानी की तरह सर्द होती है न हवा की तरह गर्म होती है। इसी तरह से आग और मिट्टी के इख्तलात से इसी तरह आग और मिट्टी के इख्तलात से एक तीसरी शय नमूदार होती है। एक तीसरी शय नमूदार होती है यानी धुआं। इसी तरह आग और मिट्टी के इख्तलात से एक तीसरी शय नमूदार होती है यानी धुआं, जो न आग की तरह गर्म होता है जो न आग की तरह गर्म होता है वरना मकानों की छतों को जला डालता, वरना मकानों की छतों को जला डालता, न जमीन की तरह सर्द होती है न जमीन की तरह सर्द होती है वरना जम जाता। क्या होता है, दूसरी मिसाल में उन्होंने दिया है हवा और पानी का। जब हवा और पानी बाहम मखलूत, बाहम मखलूत का मतलब एक साथ मिल जाते, मखलूत का मतलब मिल जाना, बाहम बाहम मतलब एक साथ। जब हवा और पानी एक साथ मिलकर के क्या होता है, एक तीसरी चीज यानी भाप बना देती है। तो ये जो है भाप क्या हो गया, न पानी की तरह सर्द होगा न हवा की तरह गर्म होगा। इसी तरह से आग और मिट्टी के इख्तलात से, मतलब आग और मिट्टी के मिलने से क्या होता है, एक तीसरी शय नमूदार होती है। नमूदार का मतलब जाहिर होती है, शय मतलब चीज। एक तीसरी चीज आग और मिट्टी के मिलने से एक तीसरी चीज जाहिर होती है। वो तीसरी चीज क्या है, धुआं है। यानी आग अगर जल रही है, आग मान लो कहीं जल रही है और उसके ऊपर आपने मिट्टी डाल दिया
जैसे ही मिट्टी डालेंगे तो क्या होगा, धुआं निकलने लगेगा। उसी को कहा गया है कि आग और मिट्टी के मिलने से एक तीसरी चीज जो जाहिर होती है वो है धुआं। और ये न आग की तरह गर्म होता है, अगर आग की तरह गर्म होता तो धुआं ऊपर उठता है, मकान की छत से टकराता है। अगर ये धुआं आग की तरह गर्म होता तो क्या करता, मकान की छत को जो है ये जला डालता। इसलिए ये आग की तरह गर्म नहीं होती है, न जमीन की तरह सर्द होती है। अगर जमीन की तरह सर्द होती तो ये जम जाता। इसलिए ये जो धुआं है, ये जो तीसरी चीज बनी है, ये न आग की तरह गर्म होती है, न जमीन की तरह सर्द होती है, बल्कि इसकी कैफियत अलग है। कहने का इतना जो एग्जाम्पल दिया, इसका एग्जाम्पल के पीछे कहने का मकसद सिर्फ एक ही है, सीधी सीधी, कि कोई भी मिनिमम दो अनासिर, मैक्सिमम कितनों ही हो, कोई भी दो अनासिर जब आपस में मिलते हैं तो मिलने के बाद जो मुरक्कब बनता है, उस मुरक्कब में क्या होता है, एक नई कैफियत पैदा होती है। और वही उसी नई कैफियत को हम मिजाज करते हैं। चूंकि हर अनासिर का, हर उनसुर का कैफियत अलग अलग होता है। जब ये आपस में मिलेंगे तो आपस में मिलने के बाद जब मुरक्कब बनाते हैं तो उस मुरक्कब में क्या होता है, एक नई कैफियत पैदा होती है। और वो जो नई कैफियत होती है, मुरक्कब के तमाम अज्जा में, ऑल पार्ट्स ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड के तमाम पार्ट्स में या मुरक्कब के तमाम अज्जा में क्या होता है, ये यकसा होता है और बराबर होता है। उसी कैफियत को हम मिजाज कहते हैं। अब ये जितना एग्जाम्पल दिया गया हवा और पानी का, आग और मिट्टी का, ये सब इसी को समझाने के लिए कहा गया। मिसाल के तौर पर हवा और पानी का कहा गया है या आग और मिट्टी का कहा गया है, तो कहीं पे मिसाल के तौर पर जैसे अभी बताया कि आग जल रही है, आपने वहां पे मिट्टी डाल दिया तो क्या होगा, आपको फौरन दिखेगा कि धुआं उठने लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आग एक अलग उनसुर है, मिट्टी एक अलग उनसुर है। जब दोनों मिले आपस में तो मिलने के बाद क्या हुआ, एक तीसरा मुरक्कब बना जिसका नाम धुआं है। अब इसके अंदर की जो कैफियत पैदा होगी, उस मुरक्कब में जो कैफियत पैदा होगी, उसी को हम मिजाज कहते हैं। और ये कैफियत इन दोनों की कैफियत से अलग होगी। जैसे इस एग्जाम्पल में कहा गया कि जो धुआं बनता है वो आग की तरह गर्म नहीं होता है। अगर वो आग की तरह गर्म होता तो क्या होता, धुआं जो है आपके झोपड़ी वगैरह में भी उठता है, मकान की छत पे जाता है। अगर वो आग की तरह गर्म होता वो धुआं, तो मकान की छत को या झोपड़ी को या किसी भी चीज को जला डालता। और मिट्टी की तरह सर्द भी नहीं होता, क्योंकि मिट्टी जमी हुई रहती है। अगर मिट्टी की तरह ये सर्द होता तो जम जाता। इसका मतलब ये हुआ कि दो मुतजाद कैफियत हो गई। आग की कैफियत हार याबिस है, मिट्टी की कैफियत बारिद याबिस है। दोनों कैफियत जब मिले तो उसके मिलने के बाद जो एक नई मरकब बना धुआं, उसके अंदर जो कैफियत थी वो अलग कैफियत पैदा हो गई। उसी कैफियत को हम मिजाज कहते हैं। दूसरी चीज है इम्तिजाज। इम्तिजाज, अब इम्तिजाज किसको कहते हैं, इम्तिजाज जो है मिलाप को कहते हैं, मिलाप को। अब इम्तिजाज जो है किसी चीज के मिलने को, जुलने को हम इम्तिजाज कहते हैं। अब इम्तिजाज जो है दो किस्म का होता है, एक होता है इम्तिजाज सादा और दूसरा होता है इम्तिजाज हकीकी। तो पहला हो गया आपके इम्तिजाज सादा। इम्तिजाज सादा और दूसरा हो गया आपके इम्तिजाज हकीकी। अब इम्तिजाज सादा क्या है,
इम्तिजाज जो है क्या है, फिर से रिपीट करते हैं, इम्तिजाज जो है ये मिलाप को कहते हैं, यानी दो या दो से ज्यादा अनासिर जब आपस में मिलते हैं तो उसी मिलाप को हम इम्तिजाज कहते हैं। अगर इम्तिजाज की डिफिनेशन लिखना हो उसको चाहिए तो फिर से इम्तिजाज की डिफिनेशन लिख सकते हैं, इसको हटा के फिर इसमें बताते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इम्तिजाज की तारीफ यह है, दो या दो से ज्यादा अनासिर जब आपस में मिलते हैं तो इसको इम्तिजाज कहा जाता है। जब दो या दो से ज्यादा अनासिर आपस में मिलते हैं इसी को इम्तिजाज कहा जाता है। ये जो है आपके इम्तिजाज की डिफिनेशन हो गई। अब आ जाइए इसकी टेस्ट पे। इसकी दो किस्में हैं, इम्तिजाज की दो किस्में। पहला हो गया इम्तिजाज सादा, दूसरा हो गया आपके इम्तिजाज हकीकी। पहला हो गया इम्तिजाज सादा और दूसरा हो गया आपके इम्तिजाज हकीकी। इसको फिर से रिपीट कर देते हैं। इम्तिजाज क्या है, जब दो या दो से ज्यादा अनासिर जब आपस में मिलते हैं तो इसको इम्तिजाज कहा जाता है। इम्तिजाज की दो किस्में हैं, पहला हो गया इम्तिजाज सादा और दूसरा हो गया इम्तिजाज हकीकी। अब फिर हम इम्तिजाज सादा को लेते हैं। इम्तिजाज सादा, इम्तिजाज सादा। अब इसकी डिफिनेशन क्या है, जब दो या दो से ज्यादा अनासिर जब दो या दो से ज्यादा अनासिर बाहम एक दूसरे के साथ इस तरह मिले, बाहम एक दूसरे के साथ इस तरह मिले कि मुरक्कब में उनके साबका खवास बाकी रहे। मुरक्कब में उनके साबका खवास बाकी रहे और दोबारा उनको अलग किया जा सके। दोबारा उनको अलग किया जा सके। अब इसमें क्या है, इम्तिजाज सादा है जब दो या दो से ज्यादा अनासिर बाहम कहते हैं एक साथ एक दूसरे के साथ इस तरह मिले कि मुरक्कब में इनके साबका खवास बाकी रहे। साबिक कहते हैं पहले वाले, जो पहली वाली खुसूसियत है या जो पहली वाली कैफियत है वो बाकी रहे और दोबारा उनको अलग किया जा सके। यानी यह है कि जब दो अंसुर आपस में मिलते हैं, एक अंसुर की कैफियत अलग होती है, दूसरे की अलग होती है। दोनों मिलने के बाद क्या होता है, एक मुरक्कब बनाते हैं, लेकिन उनके जो साबका खवास हैं वो ऑलरेडी उसमें बाकी रहे और जब भी चाहे हम उनको अलग कर सकते हैं।
तो इसी को हम इम्तिजाज सादा कहते हैं। ठीक इसका अपोजिट डिफिनेशन हो जाएगा इम्तिजाज हकीकी की। उसमें क्या होगा कि जब दो या दो से ज्यादा अनासिर आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो क्या होता है, एक नया खवास पैदा हो जाता है, उनके साबका खवास बाकी नहीं रहते हैं और उनको हम दोबारा अलग भी नहीं कर सकते हैं। इसी को हम इम्तिजाज हकीकी कहते हैं। अब यहाँ पे इम्तिजाज सादा है, सीधा सीधी एग्जाम्पल है, मिसाल के तौर पर शरबत है। अब शरबत में क्या होता है कि पानी होता है और शक्कर होता है। पानी की खवास अलग है, शरबत की खवास शक्कर के अलग है। दोनों का आपस में मिलने के बाद क्या हो जाएगा, जो सोल्यूशन बनेगा, जो महलूल बनेगा, उसका जो जायका होगा या उसका जो टेस्ट होगा वो मीठा होता है। अब इसके लेकिन जो शक्कर के खवास है वो भी मौजूद है, जो पानी के खवास है वो भी मौजूद है। अब हम क्या करेंगे, अगर चाहें तो दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। कैसे अलग करेंगे, शरबत को जो है हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। गर्म करने से क्या होगा, भाप, पानी जो है भाप बन के उड़ेगा। जब भाप बन के उड़ेगा उस भाप को हम अगर अलग जमा कर लें तो वो फिर क्या होगा, पानी की शक्ल इख्तियार कर लेगा। और पानी जब भाप बन के उड़ जाएगा तो जो शक्कर होगा, जो सॉलिड पार्ट होगा, वो ऑलरेडी बर्तन में जमा हो जाएगा। तो शक्कर भी अलग हो गया और पानी भी अलग हो गया। तो ऐसे इम्तिजाज को, ऐसी मिलावट को हम इम्तिजाज सादा कहते हैं, जिसमें के मुरक्कब में जो उनके साबका खवास होते हैं, तो पहले वाली जो उनकी कैफियत होती है, जो खुसूसियत होती है, वो बरकरार रहती है। इसी को हम इम्तिजाज सादा कहते हैं। अब इसमें जो है एग्जाम्पल जैसे आपको बताया, अब चाहे तो इसका मिसाल लिख सकते हैं। मसलन एक गिलास पानी में शक्कर डाल दी जाए, एक गिलास पानी में शक्कर डाल दी जाए तो महलूल का जायका मीठा होगा। महलूल कहते हैं सॉल्यूशन को। तो महलूल का जायका, जायका कहते हैं टेस्ट को, तो महलूल का जायका मीठा होगा। और उसमें पानी और शक्कर के खवास बाकी होंगे, और उसमें पानी और शक्कर के खवास बाकी होंगे। फिर अगर महलूल को आग पर गर्म किया जाए, महलूल को आग पर गर्म किया जाए, फिर अगर महलूल को आग पर गर्म किया तो इस अमल के नतीजा में क्या होगा कि पानी भाप की शक्ल में उड़ जाएगा। पानी जो होगा वो भाप की शक्ल में उड़ जाएगा। जिसको जमा कर लिया जाए तो पानी की शक्ल हो जाएगी ये भाप, जिसको जमा करने पर भाप फिर पानी की शक्ल इख्तियार कर लेगा। भाप फिर पानी की शक्ल इख्तियार कर लेगा। एक गिलास पानी में शक्कर डाली जाए तो महलूल का जायका मीठा होगा और उसमें पानी और शक्कर के खवास बाकी होंगे।
پھر اگر محلول کو آگ پر گرم کیا جائے تو اس عمل کے نتیجہ میں بھاپ پانی کی شکل میں اڑ جائے گا، جس کو جمع کر بھاپ پھر پانی کی شکل اختیار کر لے گا. بھاپ پھر پانی کی شکل اختیار کر لے گا اور شکر باقی رہ جائے گی. اور شکر باقی رہ جائے گی. ایسے امتزاج کو امتزاج سادہ کہتے ہیں. ایسے امتزاج کو امتزاج سادہ کہتے ہیں. یہی ہو گیا امتزاج سادہ، یعنی کوئی بھی دو ایلیمنٹس کو جب آپس میں ملاتے ہیں وہ مرکب بنتا ہے. تو لیکن کیا ہوتا ہے، اس مرکب میں اس ایلیمنٹس کے جو ہے کیا ہوتے ہیں، جو سابقہ خواص ہیں وہ برقرار رہتے ہیں. اور جب بھی چاہیں ہم دونوں ایلیمنٹس کو الگ الگ کر سکتے ہیں. یعنی اس کی جو بانڈنگ ہوتی ہے بہت ہی لوز ہوتی ہے اور اس کو ہم جب چاہیں الگ الگ کر سکتے ہیں. تو ایسے ملاپ کو یا ایسے امتزاج کو ہم امتزاج سادہ کہتے ہیں. اس کے بعد دوسرا ہے امتزاج حقیقی. نیکسٹ ہے آپ کے امتزاج حقیقی. سب سے پہلے اس کو لکھ لیتے ہیں، یہ ہے کیا امتزاج حقیقی، پھر سمجھتے ہیں. امتزاج حقیقی جب دو یا دو سے زیادہ عناصر باہم ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح ملیں کہ ملنے کے بعد ان کے سابقہ خواص بدل کر نئے خواص پیدا ہو جائیں. ان کے سابقہ خواص بدل کر نئے خواص پیدا ہو جائیں اور ان کو سابقہ حالت پر لوٹنا مشکل ہو جائے. ایسے امتزاج کو جو ہے امتزاج حقیقی کہتے ہیں. ایسے امتزاج کو امتزاج حقیقی کہتے ہیں. یعنی یہاں ہے کہ جو امتزاج سادہ کی ڈیفینیشن بتائی جسٹ اس کا اپوزٹ ہے. اس میں کیا ہے، سابقہ خواص باقی رہتا ہے، اس میں سابقہ خواص بدل کر نئے خواص پیدا ہو جائیں. یعنی جب دو یا دو سے زیادہ ایلیمنٹ آپس میں ملتے ہیں تو ملنے کے بعد جو مرکب ہوتے ہیں اس مرکب میں جو ان کے سابقہ خواص ہیں، یعنی ان دونوں ایلیمنٹس کے جو پہلے والے خواص ہیں وہ بدل کر نئے خواص پیدا ہو جائیں. اور ان کو اگر ہم سابق حالت پر مطلب پہلے والی حالت پر اگر ہم لوٹانا چاہیں تو ان کا لوٹنا مشکل ہو جائے، وہ سابقہ حالت پر وہ نہیں لوٹ پاتے ہیں. ایسے امتزاج کو ہم امتزاج حقیقی کہتے ہیں. تو دونوں میں ڈفرینس کیا ہوا، امتزاج سادہ میں جو پہلے والا ایلیمنٹس تھا وہ اپنی حالت پر واپس آ جاتا ہے، اور امتزاج حقیقی میں مرکب بننے کے بعد جو ایلیمنٹس ہوتا ہے وہ اپنے
पहली वाली हालत पर वापस नहीं आता है। अब इसका एग्जाम्पल में जैसे मिसाल के तौर पर चीनी है, चीनी को अगर आप गर्म करेंगे तो क्या होगा, पहले ये पिघलेगी, पिघलने के बाद फिर ये धीरे धीरे क्या होता है, और ज्यादा गर्म करने पर ये कोयला की शक्ल अख्तियार कर लेती है। तो जब जो है क्या होगा, चीनी मुरक्कब बना, क्या कोयला बन गया। अब कोयला की खसूसियत बिल्कुल अलग है, चीनी की खवास बिल्कुल अलग है। अब कोयला से उसको अगर आप चाहें कि वापस चीनी की शक्ल में हम उसको तब्दील कर लें तो ये मुमकिन नहीं है। यानी इसने जो है, जो जब मुरक्कब बना, जो उसके जो साबका खवास थे चीनी के कोयला में, वो खत्म हो गए, कोयला की एक नई खवास बन गई है। अब अगर हम कोयला से वापस चाहें कि चीनी में उसको वापस ले आए तो वो मुमकिन नहीं होगा। तो ऐसे इम्तिजाज को हम इम्तिजाज हकीकी कहते हैं। तो ये हो गया मिजाज के बारे में। हालांकि मिजाज में थोड़ा सा है फलसफा में, बाकी जो इसका पूरा डिटेल है मिजाज के बारे में वो आप उमूर तबिया में पढ़िएगा। जब जमाल साहब आप मिजाज पे आएंगे तो इसका बहुत सारा डिटेल्स है, वो पढ़िएगा। इसमें सिर्फ डिफिनेशन है थोड़ा सा, और इम्तिजाज है फलसफा में, उसको हमने बता दिया। तो आज जो है मिजाज ये कंप्लीट हो गया। इंशाअल्लाह ताला कल जो है, या परसों, कल तो क्लास नहीं है, परसों जो है फिर नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करते हैं। यस सर।